الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، ذوالحجہ دا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کے اندر ایک اہل اسلام بہت بڑا فریضہ ادا کرنے واسطے کعبۃ اللہ دے اندر اور میدان عرفات دے اندر حاضر ہوندے نے۔ اللہ پاک جتنے حجاج اکرام پوری دنیا دے جس کونے تو بیت اللہ اندر پہنچ گئے نے، مکے اندر پہنچ گئے نے، اللہ پاک انہاں دا اے سفر اپنی بارگاہ اندر منظور اور مقبول فرمائے۔ اور اللہ سونیا اسا دعا کرنے التجا کرنے آئندہ سال موت تو پہلے مالک سونیا سانوں بھی حج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر چند منٹاں دے اندر سب تو پہلی چیز جڑی بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی دے مسائل۔ سپیکر چھیڑیا تو نہیں کسی نے؟ چونکہ کچھ دوست احباب انہوں نے قربانی خرید لیے اور زیادہ تر تقریباً قربانی خریدن والے نے قربانی خریدن تو پہلے کنہ چیزاں دا خیال رکھنا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال ضروری جڑے نے نا تقریباً ایویں 2 یا 3 مسئلے تواڈے سامنے رکھنے نے، پھر انشاءاللہ الرحمن اس قربانی دا فلسفہ، یہ قربانی اساں کیوں کرنی ہے، کس نبی دی سنت نو اللہ پاک نے زندہ رکھ کے اے مسلمانہ واسطے اللہ پاک نے ایک نمایاں نشانی باقی چھوڑی ہے، اس دی وجہ اور تسمیہ بیان کردیا ہویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے باقی چند ایک پہلوان دے اوپر انشاءاللہ روشنی پاواں گے۔ قربانی لفظ قرب دے اندروں، قرب دا معنی ہوندہ ہے قریب، قربا یقربو، قریب ہونا، کسی چیز دے قریب ہونا، کسی چیز نو اپنے قریب کر لینا۔ قربانی جڑی اساں کرنے ہاں اے دا معنی اصطلاحی کی ہوئے گا، ایسا جانور جڑا بے عیب جانور ہوئے، خوبصورت ہوئے، دل نو باندا ہوئے، خلوص نیت نال اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے اندر جنوں قربان کیتا جائے انہوں کی کہندے نے قربانی۔ کی کہندے نے قربانی۔ اس تعریف دے اندر جڑیاں گلاں آئیاں نے انہاں گلاں تے غور کرنا تسی۔ اللہ دی رضا واسطے جڑا جانور للہیت
ਤਕਵੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਨੀਅਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈਏ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਵੱਜਦਾ ਬਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ, ਬਸਤੀ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਬਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ 10 ਜ਼ਿਲਹੱਜਾ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ बढ़ेगी, ਰੇਟ बढ़ेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਹਬੇ ਅਸੀਅਤ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਬਰਾਦਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਏਗਾ, ਅਸਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਨੀਅਤ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਦੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਹੈ, लेकिन नीयत है बना लो। अगर नीयत ठीक नहीं, याद रखना ए तेरी कुर्बानी अल्लाह दी बारगाह अंदर बोलो कबूल हो सकती नहीं। दूसरी चीज़ इस तारीफ के अंदर बयान हुई है जानवर किया जाए बेऐब। वो ऐब किन्ने ने मैं तुहानू मुख्तलिफ अहादीस नू इकट्ठियां करके ना पंज को ऐब दसना। इन्हां पंजां ऐबां तो बाहर जिहड़ा ऐब होएगा याद रखना अखां बंद करके वो जानवर ज़िबा कर दिया जे वो ऐब नहीं गिनिया जाएगा। सब नालों पहली चीज़ जानवर का जिहड़ा ऐब है वो जानवर खरीदन लगे कुरबानी करन लगे असां उहनूं चला के देखना है कि इहदे अंदर कानापन ते नहीं नज़र आ रहा। जिहड़ा काना जानवर होएगा ना ए भैंगा जानवर जिन्हों कहिंदे ने वो देखेगा होर अंदाज ना, चलेगा होर अंदाज ना। जे ऐसा जानवर जिहड़ा काना होए और ओदा कानापन वाजे होए वो अल्लाह दी राह अंदर बोलो कुर्बान करना नहीं करना। दूसरी चीज़ जिहड़ी बुनियादी चीज़ है ऐसा बीमार जानवर जिहदी बीमारी वाजे होए वो अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बानी करना नहीं करना। और तीसरा जानवर ऐसा ऐब जिस जानवर अंदर होए अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बानी नहीं हो सकता, वो अजर नहीं मिलेगा। ऐसा जानवर जिहड़ा लंगा के तुरदा होए, झोल पा के तुरदा होए, लंगड़ा होए और ओदा लंगड़ापन वाजे होए नज़र आ रहा है, ऐसा जानवर भी अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान नहीं करना। और ऐसा कमज़ोर जानवर जिहदी तुहानू कमज़ोरी नज़र आ रही है, यानी जिहदे ते कोई रंग ढंग रूप खून उहदे अंदर गुद्दा नज़र नहीं आ रहा, वो हुसन नज़र नहीं आ रहा, ऐसा जानवर बोलो अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान करना नहीं करना। और पंजवें नंबर ते ऐसा जानवर जिहदा सिंग एक ठीक है दूसरा टुटिया होया है, ऐसा जानवर अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान नहीं करना। अलबत्ता कोई सिंग भुर भुर गया होए ते कर लो, कोई मसला नहीं।
ਔਰ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਨ ਕਟਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਛਤਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਭੂਰੇ ਭੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ। ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਨ ਕਟਿਆ ਹੋਏ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਧਾ ਕੰਨ ਕਟਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਰਾਖ ਹੋਏ, ਕੱਟ ਹੋਏ ਬੜਾ, ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਖਤੀਬ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਖਤੀਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਬਾਤ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਿਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। 10, 11, 12, 13 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2-3 ਬੱਚੇ ਲਏ ਨੇ, 8-10 ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਛਤਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ 100 ਊਂਠ ਨਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 63 ਊਂਠ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2 ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਵੱਲ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ 1, 2, 3, 4 ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਅਜੇ ਖਰੀਦਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੌਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਉम्मत ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ उम्मत ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਵਾਸਤੇ बड़ी अजीम कुरबानी है। माशाअल्लाह ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत ज़्यादा कुरबानियाँ ने ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ईद उल अज़हा वाले दिन कुरबानी करनी है। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੀਮਤੁਲ ਅਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਹੀਮਤੁਲ ਅਨਾਮ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 4 ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੂਰਾ ਅਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 8, ਯਾਨੀ 8 ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਨਰ ਮਾਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਛੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਛੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈੜਾ ਗਾਏ, ਇਹ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ, ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਔਰ ਬੱਕਰਾ, ਛਤਰੀ ਔਰ ਛਤਰਾ, ਦੁੰਬਾ ਔਰ ਦੁੰਬੀ, ਇਹ ਛਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ ਊਂਠ। ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 5ਵੇਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੀਮਤੁਲ ਅਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੀਮਤੁਲ ਅਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 4 ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਟਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟਾ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਛੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਰਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਆ, ਹਲਾਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਛਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਊਂਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਕੱਟੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੱਝ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਬਈ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਐਸਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਬਈ, ਕਰ ਲੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10 ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸਾਂ ਅਜਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਾਈਦਾ ਬਈ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਂਸ ਦਾ दूध ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਛੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਛੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ? 7। ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ 2-3 ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਵੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3-4-5 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 4-5 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬਈ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਬੇ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸੁੰਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬੇ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਆगे ਚਲਾਨਾ। ਹਦੀਸ ਸਿਲਸਿਲਾਤੁਲ ਅਹਾਦੀਸ ਅਸ-ਸਹੀਹਾ ਸ਼ੇਖ ਅਲਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। नबी पाक सल्लम दी एक सहाबिया है जिन्हां दा नाम है सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं इस तरह बैठी हुई हाँ, मेरे करीब तो नबी पाक सल्लम दा गुज़र होया। मैं अर्ज़ की है सोने महबूब सल्लम जी, मैं बूढ़ी हो गई हाँ, कमज़ोर हो गई हाँ, मैं चार पाई ते रहनी हाँ,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਅਜਰ ਬੜਾ ਹੋਏ, ਸਵਾਬ ਬੜਾ ਹੋਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ 4 ਅਮਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, 4 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਜਰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਉम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी ਜਦੋਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ ਨਾ 100 ਮਰਤਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਮਰਤਬਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 100 ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 100 ਗੁਲਾਮ आज़ाद करन दा अजर ते सवाब अता कर देंदे ने। और दूसरे नंबर ते आपने फरमाया ए उम्मे हानी चारपाई ते बैठी रहनी है, बैठिया 100 मरतबा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। की पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह। 100 मरतबा पढ़ लेंगी, अल्लाह पाक 100 अरबी नस्ल दे जवान तरबियत याफ्ता घोड़े अल्लाह के रस्ते अंदर मैदाने जिहाद के अंदर वक़फ करन दा, अल्लाह के रास्ते अंदर सदका करन दा अल्लाह पाक अजर अता फरमा देगा। तीसरे नंबर ते आपने फरमाया चारपाई ते बैठी है ते बैठिया 100 मरतबा पढ़ना है। की पढ़ना है? अल्लाहु अकबर। की पढ़ना है? अल्लाहु अकबर। ते मिलेगा की महबूब जी? आपने फरमाया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਊਂਟ 100 ਊਂਟ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਮਰਤਬਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया ए ज़मीन ते आसमान के दरम्यान जिन्ना खलाओ है ना, ए जिन्ना फासला ते खलाओ है, अल्लाह पाक उहदे वास्ते नेकियां दे नाल ये सारे दा सारा खलाब भर देंदा है ते पुर कर देंदा है। लिहाजा परेशान ना हो, अगर अल्लाह ने हिम्मत नहीं ना दी, माल नहीं, जायदाद नहीं, ते तनख्वाह थोड़ी है, घर दा बच्चियां दा पेट ही पलदा है, हांडी पकदी है, रोटी सुबह शाम दी पकदी है, ते शुक्र कर रब दा। इसे शुक्र दे हालत दे अंदर अल्लाह नू याद करदा रह ते ए पढ़ाई पढ़दा रह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक तेनू अजर भी अता करेगा और अल्लाह पाक इस वज़ाइफ ते वजीफे दी बरकत दे नाल अल्लाह तेरी इस्तिताअत दे अंदर मजीद हिम्मत ताकत अल्लाह पैदा फरमानगे, अल्लाह तेरे घर दे अंदर औलाद दे अंदर बरकत फरमानगे। हुण कुर्बानी करन तो पहले कुर्बानी हुंदी है जज्बे दे नाल। किदे नाल हुंदी है बोलो? जे जज्बा नहीं हाजी साहब, कुर्बानी हमेशा देंदे ही वो लोग ने जिन्हां दा कोई जज्बा है। ते लिहाजा एक कुर्बानी का जिहड़ा फलसफा बैकग्राउंड है ना, जो कुछ इस कुर्बानी के पिछे जिहड़ियां कुर्बानियां ने वो सारियां दियां सारियां जज्बात ने। वो एक जज्बा है, वो जिहड़ा जज्बा है वो किहड़ा जज्बा है? गुज़श्ता तो पेवस्ता खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर मैं पैगंबर रब दे बड़े लाडले पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दा एक अहम तरीन पहलू बयान करदे इस मुकाम ते पहुँचे सा कि जिस वक्त इब्राहीम ने दावत तौहीद दी, बाप जानी दुश्मन बन गया और कौम कबीले वाले जानी दुश्मन बन गए। वक़्त दा हुक्मरान नमरूद जानी दुश्मन बन के बहुत बड़ी आग जलाई है। उस आग दे अंदर सैयदना इब्राहीम नू सुटिया गया। अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहीम दा बाल बाल इस आग दे अंदरों बचा लिया है। जदों अग दे अंदरों बच गए ने, बाहर निकल गए ने, ए सारी कौम शर्म दी वजह दे नाल नज़रां झुक गईयां ने। आसमान वल्लों हिजरत दा हुक्म आ गया, अपना घर बार, अपना ए कौम कबीला, अपनी बरादरी, अपना मुल्क ते अपना शहर छोड़ के चले जाओ। जिस वक्त वापस पलटन लगे ने ना, ते कुरान पाक ने नक्शा खिंचिया। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है,
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाते ने वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी बरादरी, ऐ मेरे बाप जी, ऐ मेरा खेशते कबीला कौम बरादरी, कन खोल के सुन लो, अक्खां खोल के तक लवो, ऐ कन खोल के सुन लवो। अल्लाह पाक ने मैनू अग दे अंदरों निजात अता कर छोड़िए। ऐ मेरी कौम तुसा मेरे नाल वफा कोई नहीं कीती। ऐ मेरी कौम मैं तुहाडे नाल कदम कदम ते वफावां करदा रहा। ऐ मेरी कौम कदम कदम ते तुहानू शैतान वाले रास्ते तो रोकदा रहा। कदम कदम ते मैं तुहानू रहमान वाला रास्ते दी निशानदेही करदा रहा। लेकिन तुसा मेरे नाल कदम कदम ते जुल्म ते ज़ियादतियां ते उतर आए हो। मैं छोड़ करके जा रहे हैं तुहाडा पिंड ते बस्ती ते शहर। ऐ कौम कबीले वाले हो सुन लो, मैं तुहानू छोड़ करके जा रहा। अपनी बीवी सारा नू नाल ले आए, नाल लैके ते जा रहे ने। ते रास्ते दे अंदर जदों बियाबान जंगलां दा सफर तय करना पे आए, ए बाइबल शहर छोड़ के फलस्तीन दी तरफ जा रहे ने। सफर बड़ा लंबा है, पहाड़ियां दा सफर है और पैदल सफर कर रहे ने ते नाल बीवी है। अचानक रास्ते अंदर ख्याल आया, दिल दे अंदर बात आई, अल्लाह जी किते मेरी औलाद भी हुंदी, मेरा पुत्र इन्हां सफरां अंदर हुंदा, मेरा सहारा बन जांदा। मुल्तान वाले ओ बंदा उम्र दे किसे भी हिस्से अंदर पहुंच जाए, लेकिन ए औलाद वाला मेवा ए ते याद आया ही करदा है। ए औलाद वालियां मुहब्बतां ते इंसान नूं तड़पा देंदियां ने। ए रब दे पैगंबर दिल अंदर ए जज्बा उठे आए, दिल अंदर ए बात आई है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह मैं कौम ते कबीले दे नाल लड़दा रहा वां, तन तनहा कल्ला लड़दा रहा वां। अज मैं एक सहारा पिया लभना वां, किते पुत्र अता कर दे, मेरे बुढ़ापे दा सहारा बन जाए, इन्हां सफरां दा सहारा बन जाए। हजरत इब्राहीम तकरीबन 90 साल दी उम्र दे करीब पहुंच गए ने। जनाब इब्राहीम दुआवां करदे करदे फलस्तीन दे अंदर जा रहे ने। रास्ते दे अंदर एक बादशाह दी बस्ती आई है, एक बादशाह दा महल आया है। इस बादशाह दे करिंदे इब्राहीम नू खलार के पुछदे ने किधर जा रहे हो। नाम पता पुछन तो बाद अपने बादशाह दे कोल पेश हो के कहंदे ने, ऐ बादशाह सलामत, इंज इंज करके एक औरत ते इब्राहीम नाम दा बंदा है, वो तुहाडे महल दे करीब तो गुजर रहा है ते आगे किते सफर करने वास्ते जा रहा है। फरमाया बादशाह कह लगा गिरफ्तार करके ते मेरी अदालत दे अंदर पेश किया जाए। वाकया इशारा तन मुख्तसर करके बात आगे चलाना। ए मियां ते बीवी नू पेश किया जा रहा है। हजरत इब्राहीम अपनी बीवी नू कान अंदर आवाज लगा के कहंदे ने, ऐ मेरी बीवी मैं इन्हां करिंदियां दे अगे तेनू अपनी बहन कह छोड़िया है, इस वास्ते बादशाह दे दरबार दे अंदर जाके मैनू जुटलाना कोई नहीं, उते बहन कह देना है, क्योंकि इस रूहे जमीन दे ऊपर तेरे ते मेरे तो सिवा कोई भी मोमन नहीं। ते मोमन मोमना दे भाई ने, ईमान वाले ईमान वालियां दे भाई ने, मैनू टुकराना कोई नहीं। ते अम्मा सारा नू अंदर पेश किया गया है। सैयदना इब्राहीम ने जल्दी जल्दी वुजू किया है ते नमाज शुरू कर दी है। जिवें नमाज शुरू की है ते अंदर जाके अम्मा जी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने वुजू करके सजदे पै के आसमान वाल चेहरा कर ले आए। अर्जा कीतियां ने, ऐ मेरे अल्लाह सोनिया, मेरे खामद तो इलावा ऐसी जिस्म दे ऊपर कदी किसी गैर महरम दी नजर कोई नहीं पई। ऐ अल्लाह सोने इस बादशाह दियां शरारतां दे कोलो इस मेरियां इज्जतां दी हिफाजत फरमा दे, महफूज फरमा दे मेरियां इज्जतां नो। बाहर सजदे अंदर पै के दुआवां कर रहे ने इब्राहीम। ऐ बादशाह आगे बढ़े है, इज्जत ते हथ पान लगाए, आसमान वाले रब ना काला मिलाइया। मां जी अर्ज कर
करदियां ने अल्लाह मेरे सोने अल्लाह इज्जतां दा मालिक तू है ते बाहर इब्राहिम की आंदे ने ए अल्लाह सोनिया मैं बाप दियां जुदाइयां बर्दाश्त कर लईयां लेकिन अज मेरियां अखां दे सामने मेरी बीवी दी इज्जत तार तार हो जाए ए मालिक सोनिया मेरे कोलों इस रूहे ज़मीन दे ऊपर जिंदा नहीं रहा जाएगा ऐ मेरे सोने अल्लाह नमरूदियां दे जुल्म ते ज़्यादतियां बर्दाश्त कर लईयां अल्लाह ओ मैं बर्दाश्त करके आ गया लेकिन मेरी इज्जत दे ऊपर अज हत्थ आएगा मैं इब्राहिम दे कोलों बर्दाश्त नहीं होएगा ऐ मालिक सोनिया बाप छड़ना कितना मुश्किल है मां नू छोड़ना कितना मुश्किल है अपना घर बार छोड़ना कितना मुश्किल है अपनी कौम ते कबीला छोड़ना कितना मुश्किल है ऐस अल्लाह सोनिया सब को छोड़ दिता है हत्ता के बलदियां अग्गां दे अंदर मैं खुश हो के मुस्कुरा के छाला ला दितियां ने अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर गया लेकिन मेरी अखां दे सामने ऐस मेरी बीवी दी इज्जत ते अज जालिम हथ पाए इब्राहिम दे कोलों बर्दाश्त नहीं होएगा इतनी बात कीती है ते अम्मा सारा ने आसमान वाले रब अगे दुआवां कर दितियां ने नमाज दी हालत अंदर ए बादशाह आगे बढ़े है हाथ पा लगा है ते एदे जिस्म ते राशे दी बीमारी पै गई है राशे दी बीमारी पै गई है हथ कंबन लग पे ने जमीन ते गश खा के डिग पिया बादशाह ते बादशाह कहने लगा कोई फरिश्ता ही मेरे दरबार अंदर ले आए हो पर्दे अंदर मावां बहना तवज्जो करना इस वाकया ते बड़ा नसीहत आमोज वाकया है गन्ना ते बंदूकां लैके बह जा जवान धियां ने इज्जतां महफूज नहीं हो सकदियां दीवारां उचियां कर लै इज्जतां महफूज नहीं हो सकदियां इब्राहिम ने दसिया जिस घर अंदर नमाज होए सजदा होए दीन होए इज्जतां उस घर दियां महफूज हुंदियां ने दीवारां उचियां करन नाल बोलो इज्जतां महफूज हो सकदियां घर अंदर अगर सजदा है घर अंदर नमाज है तन्हाई ते सजदे ने ते कदी रात नूं उठ के तन्हाई दे सजदे अंदर पै जाया करना जवान धियां ने रब दे कोलों दुआ करया कर मालिक सोनिया मेरियां धियां दी इज्जत दी हिफाजत फरमा अल्लाह सोनिया मैं इस दुनिया दे उपर इस वजह तो जलील होने वास्ते नहीं आया ना होना चाहना वा तन्हाई दे सजदे मेरी भैन अपने घर दे अंदर अपनी औलाद नूं सिखा तन्हाई दे सजदे मेरे भाई अपने घर अंदर अपनी औलाद अपने पुत्रां नूं सिखा अल्लाह पुत्रां दी भी इज्जत महफूज कर देगा अल्लाह धियां दी इज्जत भी महफूज कर देगा 3 मरतबा इवें ही होया दुआ कीती जदों तीसरी मरतबा होया है ना ते सैयदा सारा नूं अर्ज़ करदा है बादशाह हुण आखिरी मरतबा दुआ कर दे अल्लाह मैनूं सेहत दे दे ते मैं हुण ऐसी हरकत नहीं करांगा इन्नी गल कीती है ते आसमान वाले रब नूं अम्मा सारा अर्ज़ करन लगी अल्लाह जी अगर मैं दुआ ना करा तुसां शिफा ना दिओ ये मर गया ते नवीं मुसीबत पै जाएगी असीं ते मुसाफिर बंदे आ ये कतल मेरे खाते पै जाएगा अल्लाह ने सेहत अता की जो सेहत अता की है ना ये अपनी कुर्सी ते बह के अपने करिंदियां नूं आंदा है वो मेरी धी नूं ते लैके आओ जो धी नूं लिआंदा गया धी दी कलाई पकड़ी ਉਹਦਾ नाम है हाजर अरबी अंदर हाजर लेकिन मरूफ हो गया है साडे मुआशरे अंदर साडी जुबान अंदर हाजरा अम्मा जी हाजरा जवान गबरू जवान कड़ियल जवान हुसैनुल जमील और बादशाह के घर के अंदर पली हुई तो कलाई तो पकड़ के अम्मा सारा दे हाथ अंदर पकड़ा के पता की किया इन्हां महल्लां दे अंदर मैनूं इतबार नहीं इन्हां गन मैनां दे दरमियान इतबार नहीं कि मेरी धी दी इज्जत महफूज हो जाए लेकिन अज मैनूं यकीन हो गया है कि तेरे घर दे अंदर जदों तक तेरे नाल रहेगी मेरी धी दी इज्जत ते कोई हमला नहीं कर सकदा इस मैं अपनी धी नूं तुहाडी खादम बना के तुहाडे नाल तोड़ देना वा ऐ मेरी धी तुहाडी खिदमत करेगी तुसीं अल्लाह अल्लाह करदे रहिया जी ਜਿਹੜਾ इज्जत लुटदा पिया सी अपनी इज्जत चुक के ते हाथ अंदर फड़ाई जा रहा है दस रहा है कि महल्ला दे अंदर इज्जत महफूज नहीं होंदियां इज्जत महफूज होंदियां ने उत्थे जिथे रातां दे तन्हाई दे सजदे होन अखां अंदर आंसू होन रोन दी सानू जाच उंजी भुल गई है तन्हाई दे अंदर रोना इहदा मुकाम किन्ना है इहदी अजमत किन्नी है प्यारे भाईओ जिंदगी दा एक एक दुख है ना तेरे आंसुआं दे नाल रुड़ जाएगा ख़त्म हो जाएगा अगर तन्हाई अंदर पै के रोना शुरू कर दे तन्हाई अंदर पै के अपनियां अखां नू गिलियां करना शुरू कर दे तन्हाई अंदर पै के बुलियां ढिलियां ते अखां गिलियां करना तेरा काम है जिंदगी दे सारे दुख सुखां अंदर तब्दील करना अर्श वाले रब रहमान दा काम है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। पहली रात आई है तो सैयदना इब्राहीम इतने गैरतमंद ने फरमाया, ऐ सारा मैं इस जवान लड़की नूं अपने नाल एक रात भी नहीं रखना चाहता, इनू अपने नाल मैं तां रखांगा अगर मैं इहदे नाल निकाह कर लवां। पहली रात आई है, निकाह कीता है ते अपने घर दे अंदर अपने कोल रखी है। हुण ते माशाअल्लाह छुट्टियां हो गईयां ने, कज़न महीना चाचियां तायां दे घर दे अंदर रहणगे। फिर महीने तो बाद जो कज़न जाते हैं स्कूल खोलते हैं, कुड़ी नूं जिन पे ने, मुंडे नूं जिन पे ने। मैं इनू जिन नहीं पे, इनू छुट्टियां लड़ गई ने। जो दीन शरीयत नूं असां छड्डना है, मामलात इंज खराब होने ने। छुट्टियां जड़ियाँ छुट्टियां दे अंदर मैं फुफो कोल चला, जवान पुत्र है, जवान धियां ने, नहीं दीन इस्लाम तेनू इजाजत देंदा कि अपने कज़नां नूं, चाचे तायां दे बेटियां नूं एक महीना अपने भतीजियां नूं अपने घर अंदर रख। हाँ अगर रखना चाहना है, तेरे कोल अलग इंतजाम है, अलग कमरा है, उस कमरे अंदर रख। जा धियां नूं अज पर्दा कराना शुरू कर दे, वेखांगा कोई कज़न तेरे घर अंदर आ जाए, उन्हें कहना मैं इस घर अंदर लैन की जाना है, मैं इस घर अंदर लैन की जाना है। मतलब पहले की लैन जाना से घरां दियां इज्जतां महफूज करना चाहते हो, दीन नूं इस्लाम नूं फॉलो करो। सैयदना इब्राहीम ने गैरत हया दा दरस दिता है, इज्जत महफूज करन दा दरस दिता है कि जवान लड़की मैं अपने घर के अंदर नहीं रख सकता। सैयदना इब्राहीम के बारे बंदा सोच भी नहीं सकता कि इंज करनगे, कोई ऐसी सोच इब्राहीम की होएगी। लेकिन इब्राहीम पैगंबर ने गैरत हया दा दरस सबक देंदियां होया फरमाया कि जदों जवान लड़की होए ते जवान लड़का होए ते एक घर के अंदर रात नहीं गुजारी दी, इस वास्ते मैं निकाह करांगा। अम्मा जी हाजरा नाल निकाह कीता है, निकाह करके ते घर अंदर रखीए। ते वो सफ़र के अंदर जिहड़ी दुआ कीती सी ना इब्राहीम ने, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ अल्लाह सोनिया मेरे बुढ़ापे दा सहारा अता कर दे, ऐ अल्लाह सोनिया बुढ़ापे दी औलाद अता कर दे। जिंदगी दा बड़ा हिस्सा मैं गुजार के आ गया वा। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। आसमान तो हुक्म आ गया मेरे पैगंबर, कोई बात नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया है मैं तेनू पुत्र अता करांगा, और पुत्र इंज दा अता करांगा जिहड़ा हिलम वाला बुरदबारी वाला होएगा। पुत्र इंज दा अता करांगा अगर बजरी दा ट्रक भी उस पुत्र दे उपरों नगा दे, पुत्र तेरे अगे सी नहीं करेगा। मैं पुत्र तेनू अता करांगा, इंज दा पुत्र अता करांगा जिहड़ा सीरत दा सोना होएगा ते सूरत दा सोना होएगा। दुआ कीती है, रब ने कबूल कीती है। अम्मा हाजरा दे बतन अंदरों 86 87 88 साल दी उम्र अंदर इब्राहीम नू पुत्र अता कर दिता है। बोलो अल्लाह पाक बुढ़ापियां दा मुहताज। ओए अल्लाह पाक बांच औरत हो जाए, जोड़ा जड़ा है औलाद पैदा करन दे काबिल ना भी होए, अल्लाह बोलो इन्ना मजबूरियां दा मुहताज। अगर अल्लाह देन ते आए ते बुढ़ापे अंदर दे दे, अल्लाह ना दवे ते जवानी अंदर सब कुछ ठीक होए ते अल्लाह ना दे। मेरे प्यारे भाईओ, औलाद देना किदे इख्तियार अंदर है? अल्लाह दे इख्तियार अंदर है। मैं रब दे कोलों दुआ करना इस मजमे अंदर, अल्लाह सोनिया तेरे तौहीद परस्त बंदे ने, आखिर औलाद ही हुंदी है, किते ये ना होए तेरे तौहीद परस्त बंदे तरसते दुनिया तो चले ही ना जान। ये दिल अंदर गल लैके दुनिया तो तड़पते तरसते औलाद दे मूँह नूं चले ही ना जान। मालिक सोने जिहड़े तौहीद परस्त आए ने, मेरे सोने जिन्हां कोल औलाद नहीं, नेक साले औलाद अता फरमा। पर्दे अंदर मावां भैनां आईयां ने, मालिक सोने ना किसे तू दवाइयां दा मुहताज है। अगर इब्राहीम पैगंबर नूं बल दी अग चों कड्ढण ते कादर है, मालिक सोने इन्हां तौहीद परस्तां नूं औलाद देण ते भी कादर है। ऐ मालिक सोने अगर इस्माइल नूं चलदी छुरी दे नीचियों बचान ते कादर है, मालिक सोने औलाद देन ते भी कादर है। ऐ मालिक सोने अगर इब्राहीम पैगंबर नूं पिछली उम्र दे अंदर बुढ़ापे अंदर औलाद देन ते कादर है, मालिक सोने साडा यकीन है, साडा ईमान है, साडा अकीदा है।
तो इन्हां तौहीद परस्तां दे अंदर बैठे होए बे औलाद जोड़ियां नूं नेक साले औलाद अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने दुआवां नूं कबूल कीता है। जदों दुआवां नूं कबूल कीता है अल्लाह पाक ने पुत्र इस्माइल दे छोड़े आए। पुत्र मिले है ते जनाबे इब्राहिम दे चेहरे दे अव्वर मुस्कुराहटां ही मुस्कुराहटां ने। जो ही पुत्र मिले है आसमान वाले रब ने हुक्म दे छड़े आए, ऐ मेरे इब्राहिम इस पुत्र नूं ते बीवी नूं लो ते ओ जगह जड़ी है हरम मक्कातुल मुअज़्ज़मा ओ हरम इंदा बैती कल मुहर्रम, उस मेरे घर दे कोल जंगल बियाबान दे अंदर छोड़ करके आ जाओ। पहलियां आजमाइशां बड़ियां आजमाइशां बहुत बड़ियां सन, लेकिन सारियां आजमाइशां दे नालों सब नालों वड्डी आजमाइश प्यारे औलाद दी हुंदी है। पुछो उन्हां दे कोलों जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने औलाद दित्ती है लेकिन औलाद वल्लों दुखी है या धी वल्लों कोई बाप दुखी है। उस बाप दे कोलों पुछो ओदे दिन रातां ने ते रातां भी दिन ने, ना पता है दिन कदों है ना पता है रातां कदों है। उस बाप दे कोलों पुछो जिदा बेटा मजूर है, बेटा मजूर है, बेटे दे जिस्म अंदर कोई ऐसी बीमारी है ऐसी कमजोरी है। उस मां दे कोलों पुछो कि औलाद दे दुख किन्ने वड्डे दुख हुंदे ने। प्यारे ओ मापियां नूं ते औलाद दे दुख ही दुनिया तो लै जांदे ने। ए मापियां दे वास्ते अगर चाहते हो आसानियां पैदा हो जान, जिन्हां दियां औलादां सुखी ने जिन्हां दियां औलादां सेहतमंद ने प्यारे हो उन्हां दे मापे भी सेहतमंद ने। जिन्हां दियां औलादां बीमार ने दुखी ने याद रखो उन्हां दे मापे भी दुखी ने, उन्हां दे मापे भी दुखी ने। इब्राहिम पैगंबर नूं हुक्म होया बियाबान जंगल अंदर छोड़ करके आ जाओ। जनाबे इब्राहिम ने फौरी तौर पर कहा अल्लाह सोने जिवें तुसां हुक्म दिता है ते अपनी बीवी नूं नाल लिया ते चल निकले ने फलस्तीन दे अंदरों। चलदियां मक्कातुल मुअज़्ज़मा अंदर पहुँच गए ने। उस जगह ते पहुँच गए ने जिस जगह ते अज बैतुल्ला है, जिस जगह ते अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है। उत्थे बैठा के थोड़ा जिहा पानी दा मशकीज़ा है और थोड़ियां जियां खजूरां ने ते वापस पलट गए ने। अम्मा जी हाजरा अर्ज कर दियां ने ऐ मेरे सिर दे ताज वापस जा रहे हो जंगल अंदर छड़ के, इत्थे ते कोई इंसान रह गया, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं, कोई हरियाली नहीं है ते बियाबान जंगल है। अपना पुत्र जड़ा पिछली उम्र अंदर अल्लाह पाक ने दिता है अपनी जवान ते खूबसूरत बीवी नूं छड़ के किते जा रहे हो सानू ते दस के जाओ। एक मरतबा पूछिया, दो मरतबा पूछिया, तीन मरतबा पूछिया, कोई जवाब ना दिता ते इब्राहिम अपने ख्यालात दे अंदर तखयलात दे अंदर की कहंदे ने हाजरा पिछली अंदर उम्र अंदर अल्लाह ने तरस के तरसा के पुत्र दिता होए, जवान बीवी होए, किदा दिल करदा है इहो जे पुत्र नूं जंगलां दे अंदर छड़ करके आ जाए। ए हाजरा मैं किवें समझावां, ए ते मेरे रब दा हुक्म है। भला प्यो भी अपनी पिछली उम्र अंदर औलाद मिली हुई तरसी हुई औलाद नो छड़ के बियाबान जंगल अंदर आउंदा है। ऐ सारा हाजरा किवें समझावां। अम्मा जी हाजरा सवाल दा अंदाज तेज करके अर्ज कर दियां ने मेरे सिर दे ताज अगर कुछ नहीं दसना इन्हां ते दस देवो क्या अपनी मर्जी नाल छड़ के चले हो या अरशां वाले रब दी मर्जी नाल छड़ के चले हो। इब्राहिम पैगंबर चेहरा पिछे दी तरफ मोड़ के आंदे ने, अखां दे अंदर आंसू आए हुए ने ते पुत्र वल नजरां पैंदियां ने, बीवी वल नजरां पैंदियां ने। वो छोटा जिहा पुत्र बड़ा सोहना ते खूबसूरत पुत्र है, हत्थां वल वेंदे ने, कदमां वल वेंदे ने, खेड़दियां वेंदे ने, लेटदियां वेंदे ने ते फौरी तौर ते इशारा करके आंदे ने हाजरा भला मेरा दिल किवें करदा है पुत्र नूं छड़ के चला जावां। ये ते रब दा हुक्म है, रब दियां मर्जियां दे नाल छड़ के जा रहे हां, मैं कुर्बान जावां। अम्मा जी हाजरा दी इस्तेकामत तो, हौसले तो, सबर तो, तहम्मल तो अम्मा जी हाजरा फौरी तौर ते बोल के की आंदियां ने इज़न ला युज़य्यिउना, ए इब्राहिम चले जाओ सानू जंगल अंदर छड़ के, फिर अल्लाह पाक साडा इत्थे रहना ज़ाया नहीं करेगा। अगर पानी दा इंतजाम नहीं लेकिन फिर भी अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, अगर रहन दा इंतजाम नहीं अल्लाह पाक फिर भी ज़ाया नहीं करेगा। माँ जी हाजरा एडे सबर वालियां हौसले वालियां कहंदियां ने जंगल अंदर छड़ के चले जाओ ते अल्लाह सानू ज़ाया नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा।
ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਖਾਮਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਜੋਬ ਚਲੀ ਗਈ ਏ ਚੰਦ ਸਾਲ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਏ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਪਈ ਕਰਨੀ ਏ ਜ਼ਰਾ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਓ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹਲਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀਏ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸੁਣਾਈਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾਈਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀਦਾ ਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਮਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਦਈਦੀ ਏ ਉਹ ਸੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ हाजरा मेरा दिल कदों करता है मैं छड़ करके चला जावा सैयदना इब्राहीम जदों अखां तो ओझल हो गए एक पहाड़ी दी ओड़ लैके बह गए आसमान वाले रब दे नाल काला मिलाइयां ने ते दुआवां पता की करदे ने रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून ऐ अल्लाह सोनिया अपनी जवान बीवी ते अपने बुढ़ापे अंदर मिलन वाले पुत्र नो इस्माइल नो छड़ के आ गया उस जगह ते छड़ के आ गया ओ जिथे कोई ज़रात नहीं कोई खेती बाड़ी कोई नहीं ऐ मालिक सोनिया तेरे हुरमत वाले घर दे करीब छोड़ के आ गया क्यों छड़ के आया लियो की मुसलात ऐ अल्लाह सोनिया ताकि मेरी औलाद नमाजी बन जाए ऐ अल्लाह सोनिया मेरी औलाद सजदे अंदर पै के अपने गुनाहां दे कोलों मुआफ़ी मंगन वाली बन जाए फज अल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम अल्लाह मैं दुआ करना कुछ लोगों का दिल इस अपने घर वाल इस हरम दी तरफ बैतुल्ला वाल मोड़ दे वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात और बैतुल्ला दे अंदर रहन वाले वास्ते आला किस्म दे फलां दा रिज़्क़ दे दे इब्राहीम ने दुआवां कीतियां ने रब दे हुक्म दी तमील कीती है ते दुआवां कीतियां ने ते अल्लाह ने किवें कबूल कीतियां ने फरमाया है कि फजअल अफ़इदतन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते ने अगर इब्राहीम पैगंबर ऐ ना कहिंदे कि कुछ लोगों दा बाज लोगों दा दिल अपने घर वल मोड़ दे अपनी जुबान चो ए ना कहिंदे सारी दुनिया दा रुख इस घर वल मोड़ दे काबातुल्ला दे अंदर मक्के पूरे शहर दे अंदर कदम रखन नूं जगह कोई नहीं सी मिलने क्योंकि वो दुआ दा समा ऐसा समा सी वो वक्त ऐसा वक्त सी इब्राहीम पैगंबर एक एक लफज जिवें कहिंदे गए आसमान वाला रब आसमान ते कबूल करता गया अल्लाह ने दुआवां नूं कबूल कीता ते अज मक्कातुल मुअज़्ज़मा अंदर जाओ अल्लाह तुहानूं हज ते उमरे ते लै जाए अल्लाह हज ते उमरे ते लै जाए
अल्लाह जी फ्लैटां उड्डन वालियां उड़ गईयां ने ते असां हजे भी पाकिस्तान अंदर हाँ। अल्लाह असां तरला मारने आ, मालिक सोने सानू भी हज ते उमरे दी तौफीक अता फरमा दे। जदों बंदा जांदा है उत्थे वेंदा है दुनिया ही दुनिया ने, पता नहीं लगदा कि कित्थों कित्थों चल के दुनिया आ गई है। मालिक सोने दिल बड़ा तड़पदा है कि उन्हां निशानियां नू वेखीए जिथे इस्माइल पैगंबर लेटे रहे, जिस जंगल दे अंदर छड़ के आ गया बाप अपने पुत्र नो, जिस जंगल अंदर छड़ के आ गया खामद अपनी बीवी नो, और ओ मुकाम इब्राहिम ओ सफा मरवा दी साई। मालिक सोने दिल करदा है रज रज के उन्हां निशानियां नू विखा दे। बाबा जी समसाम सब कह दिओ रहमतुल्लाह अलैह। जदों गए ने ना बाबा जी समसाम एक गुजरे ने, अल्लाह दे वली सन। उन्होंने तकरीबन ना हज़रत तकरीबन मेरे अंदाजे दे नॉलेज के मुताबिक उन्होंने 24 के 25 कल्ले हज किए सन, तो जिन्होंने अंदरों 6-7 हज पैदल चल के किए सन। जहाज़ों का सफ़र नहीं, बेड़ियां का सफ़र नहीं, बहरी बेड़ियां का सफ़र नहीं, बल्कि पैदल चल के किए सन। तो वो जो काबातुल्ला दे अंदर चले गए ना, काबातुल्ला दे अंदर जाके पता की आंदे ने अपने रब दे नाल काला मिला के, ते अंदाज़ बड़ा प्यारा सीगा। पता की आंदे ने मालिक सोने नू बैतुल्ला दे अंदर दाखल ने, ते उथे बह के सजदे पै के ते रब नू पता की कह रहे ने बड़े प्यारे अंदाज़ दे नाल, बूवे अपने दे विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमल नामा हंजुआं नाल दो लैन दे। हाय 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 क्या समा होएगा, यकीन जानो अल्लाह ताला लै जाए काले गिलाफ नू चमड़े होइए ते अपने गुनाहां नू याद करदे होइए, ते असी भी कहिए मालिक सोनिया असी आके चंबड़ गए हाँ, गुनाहां अंदर लत पत हो के असी आ गए हाँ। अगर इत्थे माफ़ नहीं करना मालिक सोनिया कित्थे माफ़ करना है। मालिक सोनिया सानू माफ़ फरमा दे। अल्लाह बैतुल्ला दी हाज़री नसीब फरमा दे। हाय मेरे अल्लाह कैसा समा हुंदा है, यकीन जानो सच गया है किसी ने, वो जिन्हें वेखिया नहीं, वो जिन्हें वेखिया नहीं वो तरसदा है, जड़ा वेख के एक बारी आ गया है वो तड़पदा रहिंदा है, तड़पदा रहिंदा है कदों मेरी फ्लैट उडे। अल्लाह सोनिया अपने खजानियां चो इंतज़ाम फरमा दे। रब अगे बोलो कोई मुश्किल है। आ देखो ना ए पिछले हफ्ते अंदर हाजियां दा लेबिया के अंदरों, लेबिया शहर के अंदरों जहाज़ उड्डिया तो सारे हाजी चले गए, एक हाजी एयरपोर्ट पर रह गया। कुछ कागजात अंदर कमी सी, वो कागजात नूं सैट करदा करदा वो जिहड़ा पायलट सीगा, उहदा पायलट जहाज़ दा सीगा, उन्हें दरवाजे बंद करा ले। हाजी आ गए तो ओदी जाके मिन्नत तरला की उन्होंने, उतों के रहने वाले अफसरान ने भी अल्लाह के बंदे एक हाजी है उन्होंने लेट हो गई है तो इस हाजी नूं भी बाड़ लै, इहनूं भी लै जा। पायलट कहंदा ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, लिहाजा मैं नहीं, जड़ा रह गया। जहाज़ उड़ाया तो वो जड़ा आमर नामी बंदा सी ना, जड़ा हाजी पिछे रह गया, वो बड़े इतमान ना एयरपोर्ट ते बैठा बस दुआवां करदा रहा, बड़ा खुश बैठा तो वो वापस ना जावे। पता है कि जो फ्लैट उड़ गई हुण वापस जा जाया हो गई, हुण नहीं अल्लाह ने कबूल की तेरी दुआ, लेकिन उन्होंने रब ते तवक्कल इन्ना, भरोसा इन्ना, फ्लैट उड़ गई। एवें थोड़ी जी हवावां दे अंदर गई है तो कोई फनी खराबी आई है, फिर उतार दी फ्लैट, तो चैकअप होया तो सैट सुट किया, फिर उड़ाई है तो थोड़ी जी गई है तो फिर फनी खराबी हुई, नीचे आ गया। तो पायलट पता की आंदा है, कहंदा जिहड़ा हाजी असी छड्ड गए सां उस तो बगैर असी जहाज़ नहीं उड़ाउणा। तो उस हाजी नूं लिया के अंदर बिठाया, फ्लैट उड़ाई है तो जाके जद्दे उतर गई। यार रब ते तवक्कल इन्ना कर, अल्लाह ने औलाद नहीं दी तू रब दे गिले शिकवे करना है। अल्लाह दे बंदिया रब ने तेनू माल बहुता नहीं दिता तो रब दे गिले शिकवे करना है। अल्लाह दे बंदिया रब ते तवक्कल इन्ना कर, भरोसा इन्ना कर, अल्लाह ने तेनू कल्लिया नहीं छड्डिया। अज धी वल्लों तू दुखी है, तेरे जवाई ने तेनू जलील किया है, नकदम किया है, और ना गिले शिकवे कर, आके रब नाल काला मिला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके रबड़ दर्ज करा। अल्लाह की कसमें रब दे ऊपर तवक्कल रखन वाले और रब दे ऊपर भरोसा रखन वाले कदी किसी मैदान के अंदर अल्लाह उन्हां दी कंड नहीं लगन देंदा। जिहड़ा अल्लाह दे ऊपर तवक्कल करते ने, भरोसा करते ने। ते जनाबे बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह अपने
बड़े दुख भरे अंदाज अंदर पता की कह रहे ने, अपने बूवे विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमलनामा हंजुआं नाल दो लैन दे, तेरा बूआ छड्ड जावां किथे मेरे मालिका, तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका, हंजू लड़ी समसामनो भरो लैन दे, अपने बूवे विच बह के अल्लाह रो लैन दे, मन्निया तेरे बूवे विच मैं फबदा नहीं, जेड़ा सजदा तेनू लायक ओ मेरा सजदा ही नहीं, मुल्तजम लागे जरा हुन खलो लैन दे, बूवे अपने विच बह के अल्लाह रो लैन दे, दिल करदा ए तेरे, दिल करदा ए तेरे बूहे दी दहलीज चुमला, हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला, मैनू अल्लाह मैनू झिड़की ना मैनू झिड़की ना पुठा सीधा, मैनू झिड़की ना पुठा सीधा हो लैन दे, बूवे अपने विच बह के अल्लाह रो लैन दे। आखिर